सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। I'd like to request the artist to please come on the stage. PBG is going to introduce the artist. Welcome to Chinmaya Saket. My name is Prabhakar Ghate. I'm a sevak here. We're very happy to have two artists, Himanshu Nanda, Pandit Himanshu Nanda from Chinmaya Vibhuti, and there we have Performing Arts Center. It's called the Nadabindu. He's the director there. He's from Orissa. He studied under famous master of flute, Pandit Hariprasad Chaurasia, and the list of his accomplishments is too long, but I'm happy that he agreed to come here, and he's here. This is his last concert in Dallas, and he'll be moving on tomorrow. Accompanying him is Pandit Kalinath Mishra, very accomplished tabla player, and he has, if you pick up any famous artist, either in Kathak dance or drama or flute, Santo, all these names, Birju Maharaj, Hariprasad Chaurasia, Shivkumar Sharma, Hema Malini, the list goes on. It's too long, but I think when you listen to the tabla, you will understand why everybody wants him. We had to really twist his arm to change some of his kind of commitments to come here and accompany Himanshu Nanda. With that one, we request the artist to start. Thank you. Hari Om. Pranams to Swamiji, Ghateji, Amma, and all the members of Chinmaya Mission here. We are really privileged that this is like our finale treat. Tomorrow we are leaving, and किसी ने हमें पूछा कि कैसा लगा,
मैं बोला कि हिंदुस्तान से कुछ अलग ही लगा नहीं यहाँ. Thank you very much to all of you for accepting us and our music. How many of you have already attended our concerts? Okay. So 50-50 then. हम लोग क्या करते हैं, कभी नए जगह जाते हैं ना, वही चीज़ वापस बजा देते हैं. क्या है, कुर्ते भी वही पहन लेते हैं और राग भी वही बजाते हैं. तो इसके लिए पूछना पड़ता है. सो एनीवे, today I am going to play a raga. Its name is Madhukansh. It's a pentatonic raga, and with Nishad Komal, Gandhar Komal, and Madhyam is Tivra, as per Hindustani music. I'll play a short alap followed by jod and a composition with Pandit ji. फिर आगे देखते हैं क्या होता है. मुझे जल्दी ख़त्म करना है आज एक्चुअली, इसके लिए. नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगा तो कम से कम 3 घंटे का कॉन्सर्ट. सो थैंक यू. हरिओम. ऑडिटोरियम का लाइट बंद कर सकते हैं.
ताल 3 ताल 16 beats. हमारे म्यूज़िक में and the most important part in classical music is gamak and meend. The artist takes a lots of time to master these two techniques, and I'm just trying to sing that gamak, especially in flute, and you see how Kaliji will accompany the same thing.
Ah. You know, this is like conversation in music. We are not just playing, you know. इसको बोलते हैं बातें करना.
ये गलत बात है।
Thank you. Thank you. ये कालीनाथ जी है ना जो निचोड़ लेते हैं पूरा। अच्छा, अभी क्या सुनेंगे, तबला या बांसुरी? एक बड़ी सी एक अच्छी चीज़ याद आई मुझे निचोड़ने के ऊपर कि एक हमारे हिंदुस्तान में ना बड़ा पंजाब के लिए सरदारों के लिए बहुत अच्छी बहुत बढ़िया जोक्स होते हैं। तो किसी ने मुझे, एक सरदार जी ने ही बताया था ये कि एक बार सर्दी के मौसम में बंता ने संता के घर में गया, देखा कि संता सिंह अपनी बिल्ली को नहला रहा है। तो बंता बोलता है कि यार ये सर्दी के मौसम में तो बिल्ली को नहला रहा है, मर जाएगी। बोला नहीं मरेगी, डोंट वरी। तो बंता गुस्से से चला गया। 2 घंटे के बाद आके देखा कि बिल्ली मरी पड़ी हुई है। तो उसको गुस्सा आ गया, बोला मैंने तेरे को मना किया था सर्दी के मौसम में मत नहला। संता बोलता है यार मैंने नहलाया इसके लिए नहीं मरी वो, नहलाने के बाद मैंने उसको निचोड़ा ना इसके लिए। तो ऐसा होता है कुछ। क्या है, हम कलाकारों को थोड़ी सी बीमारी होती है। अगर अच्छे सुनने वाले बैठ जाएं 10, तो कम से कम 4-5 घंटा तो प्रोग्राम होना चाहिए। 4 घंटे के बाद लगता है कि मैं तबले को हाथ लगाया। इतनी अच्छी ऑडियंस मुझे इंडिया में कभी कभी नहीं मिलती है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है, घाटे साहब से बात हो गई है, सिर्फ एग्रीमेंट बाकी है कि 2-3 साल हम यहीं रहेंगे। लेकिन अभी नहीं, 18 को जाने के बाद वहाँ से वापस आ जाएंगे तो फिर। ओके, सो द नेक्स्ट पीस वुड बी, क्या सुनेंगे बोलिए? तबला या बांसुरी? जी? अरे बाप रे बाप। तो ऐसा है कि जैसे हम बांसुरी बजाते हैं, उसके साथ तबला कंपनी होता है, बट तबला इटसेल्फ इज ए सोलो इंस्ट्रूमेंट, है ना। एंड पंडित जी स्पेशली बिलोंग्स टू बनारस घराना, वन ऑफ द स्पेशल घराना इन इंडिया। तो उस घराने का ऐसा है, गाना भी होता है, डांस भी होता है और तबला भी है। So it's a so rich, and he belongs to that gharana and got trained under Pandit Kishan Maharaj ji. So I would request him to show some speciality of Banaras gharana with bowl. हेलो, थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि क्या है, धीरे धीरे गर्मी आएगी। तो मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मेरा तबला जल्दी ख़त्म नहीं होता है। मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा मिले तो मैं अच्छे से सुनाऊंगी तबला क्या बोलता है, क्योंकि तबला का मतलब होता है, पहले तो संगीत का बड़ा अच्छा मतलब है। आप लोग ही देखिए कि संगीत का कितना बड़ा मीनिंग है। संगीत, अगर उसमें से स निकाल दीजिए तो क्या होता है? गीत। बीच से गी निकाल दीजिए तो क्या होता है? संत। और गी के ऊपर से अगर मात्रा निकाल दीजिए तो क्या होता है? संगत। संगीत के बड़े मीनिंग हैं। स्वामी जी बैठे हैं और घाटे साहब ने कहा है कि तबला बोल के कुछ बजाइए। तो पहले तो हम लोगों का डलेस में 5-6 घर हो गया, एक घर से कोई निकालेगा तो दूसरे घर पे चले जाएंगे। और हम कलाकारों को इसका बड़ा प्यार मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है। हम बड़े भाग्यवान हैं और हमारे माता पिता का हम धन्यवाद करते हैं, गुरु का आशीर्वाद करते हैं कि उन्होंने मुझे एक ऐसी विद्या सिखाई है जिससे हम आपसे सम्मान भी लेते हैं, प्रेम भी लेते हैं, अच्छा खाना भी खाते हैं और यादें लेके चले जाते हैं। स्वामी जी ने हमसे कहा कि और कालीनाथ, आज का कार्यक्रम लास्ट है। मैंने कहा स्वामी जी अभी तो शुरू नहीं हुआ है,
लास्ट होगा तो फिर हम नमस्ते हो जाएंगे। तो ये है संगीत कि हम लोग ढूंढते रहते हैं कब मिलेगा कब मिलेगा, और जब मिले का समय आता है, जब भगवान की दर्शन करने की इच्छा होती है, तो फिर हम नमस्ते हो जाते हैं। तो ये है हमारा संगीत। हमारे गुरुजी जब जिंदा थे, पंडित किशन महाराज जी, तो मैंने एक बोल बनाया, बोल की रचना की। कभी कभी हम लोग अच्छे काम करते रहते हैं, हाँ, संगीत में। जैसे आज हिमांशु जी काफ़ी कुछ ढूंढ रहे थे सुबह अकेले में बैठ के, तो उनको बहुत अच्छा कुछ दर्शन हुआ संगीत का। तो ऐसे हम लोग कुछ न कुछ हरकत करते रहते हैं। तो एक बोल की रचना किया मैंने, और हमारे गुरुजी का नाम है किशन महाराज। तो मैंने बोल की शुरुआत की क से, और तबले की अलग अलग भाषा है क। और वो जिन्होंने उनको देखा है किशन महाराज जी को, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी, एकदम टीका लगा के, कम से कम 25-30 लाख का वो हार पहनते थे वो। हाँ, बहुत, आप कभी देखिएगा किशन महाराज उनको यूट्यूब में, मतलब ऐसी पर्सनालिटी शायद हिंदुस्तान में अब नहीं होगा। तो एक बोल है, पहले तो हम जिस मंदिर में बैठे हैं, बड़ा सुंदर है, स्वामी जी के लिए है कि बाजट डमरू शिव शंकर की। ये हमारे बनारस की रचना है। कविताएं बोल के बजाते थे, कविताएं बोल के नाचते थे, नृत्य करते थे। तो बाजत डमरू शिव शंकर की, शोभित अंग में भभूति, गले सर्प मुंडमाल, 3 नित्य जटा गंग हैं। गले सर्प मुंडमाल, 3 नित्य जटा गंग हैं। गले सर्प मुंडमाल, 3 नित्य जटा गंग हैं। ये हमारे भारत का ऐसा ऐसा कविताएं हैं कि अगर बजाएंगे तो कम से कम 2 रात लगेगा। ऐसी ऐसी बंदिशें हैं। बंदिश मतलब कंपोजिशन। उसी तरह से कहते कि गिदिन्न घेनानाना का धकत धकत, भगवान शिव का है। गिदिन्न घेनानाना का धकत धकत, त्रिधत त्रिधत धत धरधरी गिरी तथा, जटा जूट मद गंगा छलकत, शीश चंद्रमा ललाट झलकत, ग्याल माल गरवा बिच पुलकत, भस्म अंग त्रिनत्त दिगंबर, निर्गत गिरि कैलास शिखर पर, त्रिशूल धारी त्रिपुरारी, धित धित धरधरी गिरित कथा त्रिगिरित 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 गदा त्रिगिरित 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 कथा त्रिगिरित त्रिगिरित कथा त्रिगिरित 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 गदा त्रिगिरित त्रिगिरित कथा त्रिगिरित त्रिगिरित कथा त्रिगिरित 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 ना त्रिगिरित 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 कथा त्रिगिरित त्रिगिरित कथा त्रिगिरित त्रिगिरित कथा। तो एक कंपोजिशन है जिसकी रचना मैंने की कि कत घे घे टे टे कत गदी गिन नागे टे टे कत घे टे टे भागे टे टे गदी गिन नागे टे टे। इसकी स्पीड थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ।
ये एक झलक था। थैंक यू काली भाई। हमारे भारत में कोई भी सब्जेक्ट आप देख लो, वो चाहे फिलॉसफी हो, चाहे संगीत हो, चाहे साहित्य हो, चाहे नृत्य हो, इतने डाइवर्सिटी आपको मिलेगा। दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ द कल्चर। एंड अभी आप देख लो, आई वुड लाइक टू ब्रिंग दिस पॉइंट टू ऑल ऑफ यू। अभी बीच में हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी कर रहे थे कि सारे लोग बोलते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को ज़्यादा पॉपुलर है क्यों नहीं, हर घर में क्यों नहीं जानते। आप पूरे मासेस को देखो, जितना साउथ में लोग जानते हैं घर घर में म्यूज़िक है, यहाँ पे नॉर्थ में नहीं है। क्यों नहीं है? अब बोलते हैं लोग वेस्टर्नाइज्ड हो गए हैं, वो हो गए हैं, ऐसा हो गया। कभी इसके बारे में सोचिए कि द कल्चर ऑफ इंडिया इज गॉट इन्वेडेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। बाबर से पहले आके तब से हमारे क्या किए, पहले तो हमारे मंदिरों को तोड़ा, उसके बाद जब शासन करने लगे तो कल्चरल द एम्बेसडर्स जो होते हैं उनको चुना, पहले ब्राह्मणों को मारा, उसके बाद क्या किया, जो गाने बजाने वाले थे आइदर दे कन्वर्टेड देम और दे किल्ड देम। सो जहाँ संस्कृति के ऊपर हजारों सालों तक उसके ऊपर आक्रमण हुआ, वो संस्कृति आगे बढ़ेगा कैसे। उसके बाद जब मुसलमान का राज्य खत्म हुआ और जब ब्रिटिश रूल हुआ भारत में, उसके बाद राजा लोगों ने, मुसलमान राजा लोगों ने जो जो गाने बजाने वालों थे उनको सपोर्ट करते थे, ऑल्दो दे कन्वर्टेड देम बट दे केप्ट देम अलाइव। They gave them house, food, everything, and just make them happy, and they were practicing the classical art form. But for 200 years in India, what happened? कि nobody was there to support the music. तो क्या हो गया? खाने के लिए कुछ मिले तो ना संगीत करेगा कोई। तो these musicians just to feed themselves, वो लोग कहाँ गए कि कोठा वगैरह में चले गए। फिर क्या हुआ, तो द जनरल लोग जो थे, जो कि संगीत को खाली अप्रिशिएट करते थे, उस टाइम जानते नहीं थे, प्रैक्टिशनर नहीं थे, हाउ दे स्टार्टेड लुकिंग द परफॉर्मिंग आर्ट्स एज एन अगली फॉर्म ऑफ आर्ट्स। हाउ लॉन्ग? 200 years ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम, उससे पहले 1000 years। बट देखो हमारी संस्कृति का जड़, इसके लिए हमारे कल्चर को बोलते हैं सनातन। इतना हजारों साल तक अटैक होने के बाद भी आपको वही संगीत ऐसे ही मिलेगा, वही परंपरा वैसे ही मिलेगा। 2000 साल पहले जो ध्रुपद परंपरा जब गाते थे, बजाते थे, आज भी आपको मिल जाएगा कि समवन इज देयर टू प्रैक्टिसिंग द सेम आर्ट फॉर्म एज इट इज। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ आवर कल्चर। एंड आप देखो 50 years बैक हाउ मच पीपल वर अप्रिशिएटिंग हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, एंड नाउ हाउ मच इट्स एन इंक्रीज। सो हमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि द म्यूजिक इज गोइंग डाउन, रेदर द म्यूजिक इज कमिंग अप। एंड फॉर दैट इन चिन्मय मिशन Guruji has started this Nadabindu to preserve, promote and propagate the performing art form. And we are doing that. You know, I came across with a very, very, very beautiful story about, there was a village where there were two doctor couples. They graduated from a very, very good institute, but they wanted to serve the villagers. So they got permission from the government, took a small job, and they shifted to a village, and they started practicing the medicines there in the village. It's a small hospital having 2 doctors only, no more than that. And they started serving the villagers like their own family members. They've never taken any extra money from them. As much as they can give, they gave. So this continued for several years.
And what happened after like 14, 15 years, they had a child who was studying in the nearby uh, township. He came to meet the parents, and it's supposed to be his birthday was coming up. And the the doctor couple never, they accepted any gift or money, never. कोई आके पूछता था, बोलते हैं कि नहीं चाहिए, दिस मच वो लोग करते थे. बट गांव वालों को भी लगता था कि कुछ तो दें इन लोगों को, हमारी इतने सेवा किया है. तो उनको पता चला कि द डॉक्टर्स सन, हिज बर्थडे इज कमिंग अप, तो दे वांटेड टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे लाइक एनीथिंग. तो डॉक्टर को पूछा, वो बोले कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है. बट वो लोग बोले देखो हमने डिसाइड कर लिया, आपके लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चे के लिए कर रहे हैं. ही ऑल्सो फेल्ट नाइस, जब बच्चा आता है तो यू कांट से नो. तो द डे केम, द एंटायर विलेज इज़ इन ए फेस्टिव मूड. सारे घर में 14 कंप्लीट करके 15 हुआ था, तो हर जगह 15-15 दिया लगा के ऑल दिस दे स्टार्टेड डूइंग. At the midnight they were doing some puja, and middle of the night they are going to do the finish the puja and everything. So time was approaching. उस समय में क्या हुआ, एक दूसरे गांव का एक विलेजर, he approached the doctor. He said, doctor, you have to come with me. My son is not well, or I don't know whether he will survive or not if you will not come. So doctor बेचारा फंस गया अभी, whether he will go see his duty or see his child. For the first time in his life, he is celebrating something for his own child, and the entire village is involved there. So, नहीं कर सकता कुछ, and the puja is going on. He has to give the ahuti, and he has took the sankalpa also that time. क्या करेगा? So he said, please wait for few more hours. We are just about to complete. After that I will come with you. Then the villager, he didn't say anything. फिर ख़त्म हुआ, फिर डॉक्टर ढूंढा, उसको नहीं मिला, भूल गया, ख़त्म हो गया वो बात. The morning, at about 3 or 4 o'clock in the morning, the doctor's son had a snake bite. सांप ने काटा उसको. उसके बाद क्या हुआ कि दिस डॉक्टर, उसका कोई मेडिसिन अभी काम नहीं करेगा, बिकॉज बच्चे के लिए कोई मेडिसिन ही भूल जाता है, एंड लाइक दिस सिचुएशन. सो द विलेजर्स न्यू दैट देयर इज ए वैद्य इन सम अदर विलेज जो कि स्नेक बाइट को ट्रीट करता है. सो दे टुक दिस चाइल्ड टू द अनदर विलेज. डॉक्टर बोला ये कर क्या रहे हो, उसको मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं उसको. ही इज़ वेरी कन्फ्यूज दैट टाइम. बट द विलेजर्स दे टुक हिम to the Vaidya. The doctor also went. When they took the Vaidya, or Vaidya ने उसको treat किया, the child was alive. So this Vaidyas, they have a very very special technique. By just seeing the patient, they can recognize कि कौन से सांप ने काटा था उसको. This is the specialty. Very very ancient form of medicine practice they do. Now बच्चा कुछ समय के बाद ठीक हो गया, and the doctor was taking him along with him. Suddenly he realized that this is the same person who approached him for his child the night. Then he was like this. Again he went to the Vaidya. He met him. He thanked him and he said, you came today night itself for your child. What happened? He said, he's gone. He said, I am so sorry for this कि मैंने आपके बच्चे को ट्रीट भी नहीं कर पाया. The Vaidya said, I am not worried for that my son has gone, but I am worried because this knowledge will go now. Because the tradition is like that, the father has to pass this knowledge to his son. He cannot give to anyone else. So the knowledge is gone. So this is why we need to preserve and propagate this knowledge of India.
So one of the form is performing arts, and that is what Chinmaya Mission has started. Preservation and propagation. And we are doing, the students are coming to Chinmaya Nadabindu, studying with us as Gurukul Parampara. And we have started through our social responsibility program, around 50 village children are getting trained for free of cost in Chinmaya Nadabindu. And as Guruji said, it is Swara to Ishvara and Nartan to Paramatman. The music is the medium to reach the divinity. That is how we see our art form. And we request you, all of you, to come forward and help for this project in whichever way you can. May propagate and give some donation for these children or these students who are coming, and spread the word about Chinmaya Nadabindu. Thank you. We will, time is approaching. Anyway, समय एक बड़ा गड़बड़ करता है. We'll conclude the session with a bhajan. हाँ घाटे जी. Okay, 10 मिनट हो ही जाएगा ऐसे.
Thank you. Give me 2 minutes. Please take your seat. I'd like to thank Himanshu ji and Kalinath ji for once again taking us, uplifting us with your divine music. Dallas Fort Worth has had a unique opportunity to have several concerts, and it's not enough. And as you rightly said, we need 2-3 years here. So we would like you to come back again, and we also wish you the best of luck, best of all the programs that you are going to treat the entire US with. Thanks again. I'd like to also thank PBG and Asha ji for bringing us these two great artists, bringing these two great artists to the Dallas-Fort Worth Metroplex. And I think we can take the rain check that they will again bring these two artists back for a period of 2-3 years. And whosoever wishes to donate for the great cause that Himanshu ji talked about, the social projects that Chinmaya Nadabindu has taken up in India, and this is purely voluntary. And if you want to donate, here are the envelopes, and the little place here you can bring your money and put them in. Did I hear something? Yeah, and finally, Asha ji has instructed that nobody should leave without having the food. The food is served downstairs. Again, thanks to PBG and Asha ji for sponsoring today's bhajan, Swara to Ishwara, as you rightly said. Thanks again, and good night. And please go downstairs and have the food. So nobody is to leave. For Asha ji. Hari Om. Yeah, if you are donating by check, please make the check payable to CMDFW, and you can donate by cash as well. And all these funds will be collected and sent to Chinmaya Nadabindu in one check by the Chinmaya Mission. Thanks again, and Hari Om.